Hello everyone and welcome to Foreman India. We cover his side of the story exclusively. आज हम आपके सामने एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आ रहे हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और जिनकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी सन 2020 में एंड शादी के ठीक 3 महीने बाद उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली जाती है और आज तक उन्हें ये पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। और अजीब बात यह है कि दिस पर्सन इज अ विक्टिम ऑफ फॉल्स 498 ए एंड डोमेस्टिक वायलेंस केस। तो आइए इस कहानी के पीछे का सच जानते हैं। स्वागत करते हैं मिस्टर प्रशांत दास जी का। हेलो मिस्टर प्रशांत एंड वेलकम टू फॉर्मन इंडिया एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कमिंग अप विथ योर स्टोरी। Well, thank you so much for inviting me. It's really a pleasure for me to come down here and share my story. I was actually looking for such platform where I can, speak up because there's been a lot of anxiety building up in me that I really want to come out and share my story to people. Um, I, it's been it's been it's been more than approximately 3 years now that I'm suffering myself and within myself, and I'm Hmm. not getting any help from either from the society, from friends, or Hmm. it's quite difficult actually. So thank you for having me. Thanks a lot. सी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऐसे स्टोरीज को लोगों के सामने लेके आए बिकॉज व्हाट वी सी इज दैट औरतों के साथ या लड़कियों के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप हो, हरासमेंट हो, इफ टीजिंग हो, देन देर आर सो मेनी पीपल टू टॉक अबाउट इट। लोग बहुत सारे ऐसे निकल के आएंगे जो आंदोलन करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके बिहाफ में लड़ेंगे, लेकिन जब हम मर्दों की बात करते हैं बहुत सारे लोग उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, फिर हंस के उड़ा देते हैं। So men are just kind of a laughing stock, Hmm. and there is no one to even listen to them, not even the police. So that's Yeah. why we have come up with this platform, जहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग ऐसे खुल के बात करें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में और लोगों के बीच में ये अवेयरनेस स्प्रेड हो। There is not only a woman, but it can be anyone, a male, a female, a transgender, and any living being can be a victim of violence or abuse. सो प्रशांत जी, फर्स्ट यू टेल अस योर स्टोरी कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, एंड अभी क्या दौर चल रहा है आपकी जिंदगी में। वेल, थैंक यू अंतरा, आप काफ़ी ऑनरेबल कॉज कर रहे हैं और यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि मेल्स को स्पेशली इन आवर सोसाइटी बस एक लाफिंग स्टॉक की तरह देखा जाता है और एक एटीएम मशीन की तरह देखा जाता है. दैट्स अबाउट इट. यस। So really really humble to be here. Okay, so मेरी लाइफ में ऐसा लग रहा है मुझे कि काफी पहाड़ टूट गए हैं फॉर नो रीजन. हिंदी में एक कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी 12 आना. So हम्म। that is what it feels like at the moment. It all started. I got married to somebody. It was an arranged marriage. So 25th of November 2020, I got married to a Christian lady. Um, um, it was an arranged marriage again, and the things were okay between us. It was we were new. We never knew each other. हम एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले से. So first 2 months were like trying to know each other. However, what I have observed, that the person was not emotionally available. However, in couple of weeks, let's say, total total tenure that we stayed together was 3.5 months. And if I have to date that, then it starts with from 25th of November till 27th of March 2021. So that was the time period that we stayed together. And after that, a roller coaster has been started. There was no cause to it. कोई झगड़ा नहीं था. कोई कुछ भी नहीं था बेसिकली हम लोग के बीच में. There was no nuisance going around. But what I felt like that things were created by the other party, the the former wife of me, हम्म। for no reason at all. She was trying to, maybe probably she was trying to escape the house for her personal reasons, or probably she was not able to adjust in the place that she was living in. So that is how it all started. um After that, when she went off from my house, um uh, uh, there was no dialogue between us. We were not talking. As soon as she reached her home, she blocked me from every um
communicable platform possible. So there was no WhatsApp, there was no phone calls, there was no text message. The only place I can, really converse with her was emails. She was opening up my emails and reading it, and then she was replying it in a very abrupt manner, which was not acceptable. I was shocked to see कि initially चीजें तो बहुत अच्छी थी, अभी all of a sudden कुछ हुआ नहीं, और why she's behaving the way she's behaving. So it was like a bummer, it was like a shock for me initially. But then gradually चीजें थोड़ा सा sort of एक stable ground पे आने लगी. And in this while I had to go to Indore. I come from Delhi NCR at the Okay. moment. So within this while I have to go to Indore for some work. I stayed there for a couple of months because all these things were going on. My mind was not into the right frame. So I thought it's better to really take a little break and go and explore a new city. So I went there. After upon returning, I tried to have a word. I went to stay with the person in her own in her house. She lives in again, she also lives in Delhi NCR. But the behavior was, I mean, it was okay. What I was observing was okay, but the father. So in their family, she has her father, and it's herself who lives. There are two people. So father is like completely jobless. He doesn't work, and he's totally dependent on his daughter for any kind of support, financial support. So I went there. I stayed there for 1 or 2 days, and the father tried to become very aggressive with me. And that was the time when he started demanding that, okay, I don't want my daughter to live with you. And I said, okay. I mean, I tried to have a conversation. I tried to have a dialogue with him, but I was not able to understand why is he asking, why is he putting a very giving me something that is sort of not acceptable for me. So at that point उनका कहना था कि हम एक काम करते हैं, हम ना आपकी शादी खराब खत्म कर देते हैं, आप बदले में हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए. And even the brother was involved in that. So she has a brother who lives far away from her. But all of them sat together with me and kind of demanded this 10 lakh rupee का amount. And आई वॉज शॉक्ड कि भाई अभी तो मेरी शादी को लिटरली कुछ महीने ही हुए हैं, हम लोग सिर्फ 3.5 महीने साथ में रहे हैं. देन वाई सच एन एक्सट्रावेंट demand coming from your side? I was very unsure. I tried to um, clear things with my former wife, but um, even she was like कि मेरे parents बात करें, my father will talk to you, my uncle will talk to you. She was not the one who was giving me answers. She's a well educated person. She works as a manager in one of the in one of the companies and organizations in Delhi NCR. But she failed to reply to me, and that seemed like there's something fishy going on within their family. Hmm. And after that, I said ठीक है. उस टाइम भी मैंने कम्युनिक जैसे मैंने पहले बोला आपसे कि जैसे ही वो मेरे घर से 3.5 महीने के बाद चली गई थी, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अस. एवरी फैमिली मेंबर फ्रॉम हर साइड हैज ब्लॉक्ड मी from every communicable platform. But then we reestablished it in November. However, when coming back, this particular incident where the father and the brother and the daughter again was trying to manipulate the situation into ending the marriage, I was quite shocked. तो मुझे ऐसा लगा ठीक है कोई बात नहीं. So what I did, my first reaction to that was, okay, let's all sit down, let's meet among people in our society and try to resolve the matter. तो मेरा ये इनिशिएटिव था कि लोग उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं. But unfortunately again, all when we had this particular meeting, it was on 4th of December 2021, and we were all sitting in a church and trying to talk. There was this church pastor who was there. But then this lady, what I've observed in this whole scenario within that meeting was everybody was favoring the female. Hmm. वो सिर्फ लड़की को सपोर्ट कर रहे थे विदाउट इवन लिसनिंग टू माई. मुझे काफी बुरा लगा इस बारे में सुन के, बट अनफॉर्चुनेटली दैट मीटिंग डिडंट एंड वेल एंड हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाए. So after that, I thought कि it's better कि let's go a little legal. अच्छा, by the way, so when I told you this incident about the father and the brother asking for 10 lakh rupees to end this marriage, I, I went to stay at their home
when I heard that, I packed up my bag and left for my home. Uh, within a day or two, they have called up my father and said, okay, that my lawyer is sitting with me, हम लोग को ना divorce चाहिए. सो मैंने बोला, फिर मेरे फादर ने बोला ठीक है, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ. और जब कॉल बैक उन्हें किया, तो दे वर वेरी एग्रेसिव ऑन द फोन. समझ में, मतलब द पॉइंट इज कि दे वर नॉट मेकिंग सेंस. The only aim and the goal from them was to end the marriage. They were not giving any cause, they were not giving any substantial evidence कि भाई हुआ क्या, हमें बताओ तो सही हुआ क्या. कुछ And नहीं this was बताया. an arranged marriage. It was an arranged And marriage. there was no religious differences, I guess. मतलब No, no, आप no, भी no. क्रिश्चियन है? हाँ, मेरे yes, मेरे पेरेंट्स क्रिश्चियन है, but I'm more on the middle side. I'm Okay. not very religious in that part. Okay, okay. So Yeah. they are Christian, you were also Christian. So there was no religious or community like No, no, differences no, no, or no. Of cultural course not. differences. And this was an arranged marriage. But It was an suddenly arranged she marriage. went after 3 months, and then you जी. have no clue that why this happened. And they were also Yeah, not answering you. and I just want to share this incident with you, that for the period of 3 months, जो 3 महीना मेरे साथ में रही हैं, उनका behavior was, she was working from home at that time, Hmm. and she used to get up early in the morning, and me and her were living separate. We had a different house, so we were not living together. We were living separately from our parents. There was no disturbance from our parents. We had our own kitchen, we had our own bathroom, we had everything that was private to us. So So you both were living at a different place in a different house away from जी, your parents. जी, Okay, absolutely. okay, okay. So the reason I'm telling you that was because she used to get up early in the morning at around, her job used to start at 10 o'clock in the morning. 10 बजे Hmm. उनका जॉब स्टार्ट होता था. Hmm. 9 बजे वो सो के उठती थी, फ्रेशन अप होती थी, और फिर 10 बजे से लैपटॉप के आगे अपना काम करना स्टार्ट. शी यूज्ड टू वर्क टिल 8 p.m. in the evening, and during that time I had to do my office and work. मुझे अपने ऑफिस में जाना पड़ता था और काम करता था. और आई यूज्ड टू लिव इन again, so मेरा जो ऑफिस था, that was about like 40-50 kilometers away from my Hmm. home, and I used to drive. So आने में 1 घंटा, जाने में 1 घंटा. So by the time I used to reach home was 9 o'clock in the night, and she will not do anything within that time. So she was the one who was, let's say, I mean, what I assume right now is that she was like a proper workaholic who was working from 9 to 8 p.m. in the evening, and not, cooking, not doing anything. Well, I was not even expecting that from her, but if she could have shared that कि ठीक है प्रशांत, आई एम लाइक, आई वर्क और मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम आल्सो, बिकॉज द थिंग इज वी इवन हैड मेड, वी हैव प्रोवाइडेड द डोमेस्टिक हेल्प टू द पर्सन. इवन देन देयर वाज प्रॉब्लम्स. शी वाज नॉट So एबल टू like that गाइड दैट. maid जो है वो खाना वगैरह सब आपके लिए बना देते थे. Khana, safai, you name it, Okay, okay. everything. So the maid was available for good 8 hours for us. Okay, okay. Hmm. So she was there. Anyway, so uh, coming back to December, so I thought this meeting failed and we were not able to, come to a logical point of view. And again, the problem with these people is when we try to contact them, they do not respond. They block us from every channel possible, and they do not, मतलब हम लोग को respond ही नहीं करते हैं. And it Hmm. sounds very fishy to us. So what we Hmm. did was, on 7th of December, 2021, we sent out a legal notice to the person, saying it was more like a restitution of conjugal right notice, section 9. Hmm. You should come and join the company of your husband. To that, she replied in a very, the lawyer of the person replied in a very aggressive tone. And what felt like was that this person might go a little, मतलब वो जो कहना चाह रही थी उस लीगल नोटिस में, her reaction was not very positive. She was trying to manipulate everything together. मतलब पूरा ऐसे बोलते हैं ना, खिचड़ी बना दी. Hmm. पूरा Hmm. खिचड़ी बना दिया, उसमें से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है. बट हाँ, एक आउटपुट ये निकल रहा है कि एंड में, मतलब पूरा, इट वाज लाइक अ 7-8 पेज का लीगल नोटिस दैट शी रिप्लाइड अपॉन. Hmm. एंड उसमें her reaction was very doubtful, but at the end she wrote, okay, I want to live with you. So I said, okay, fine, let's live together, and I tried to communicate with her, but unfortunately that also didn't work out after. So because even that point of this, the thing is, I got married, my intention to get married was to start up a family, live life Hmm. together, spend my life with somebody. But Hmm. unfortunately that didn't work out well. So this intention back of my mind was always there, that okay, I want to establish a family and let me solve the issue. They maybe see, the thing is, but I've observed in my practice also, I've observed a lot of couples who initially do not adjust initially, but later on they try to understand the
they try to both of the people come down to a settlement, a problem solving approach, and try to live together and try to solve a life which is workable for both of them. But Mm-hmm. this thing was not happening, and during that period I was feeling very frustrated. I was very angry. I was not getting the support that I required. I was the only person who was dealing with it, and there was nobody to listen to. But anyway, never mind. After that, I decided, okay, if things are not working out, I think it's better. And now it has been um, more than a year approximately that we have been living separate. उसके बाद मैंने सोचा ठीक है यार, जब काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो इट्स बेटर टू रियली सेपरेट आवर वेज and move on. So I filed up for a divorce. When I filed up for a divorce, what I get in return is a false 498A Hmm. and a domestic violence case. That Okay. is what I get in return. So Ab guess first what? you filed for the divorce. I filed for the divorce. You were Divorce. the first one to do that, and but उन्होंने आपके ऊपर 498A and domestic violence लगाया after you filed for the divorce, right? Yeah, correct. Okay. So yeah, so because मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा था. I was trying to, because the thing is, when you're in a relationship, communication is the key. कभी Hmm. भी आप किसी भी Definitely. रिलेशनशिप में होगे, चाहे बी इट योर बॉस, बी इट योर हस्बैंड, बी इट योर वाइफ, एनी ब्रदर सिस्टर, नेम इट, आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक चीजें सॉल्व नहीं होंगी. Hmm. कम्युनिकेशन ही आपने तोड़ दिया तो फिर द रिलेशनशिप हैज टू गो डाउन द हिल. Yes. स्पॉइल होना कोई नहीं, इट्स इनएविटेबल, नोबडी कैन Hmm. स्टॉप. Hmm. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. सो मैंने सोचा जब कम्युनिकेशन ही नहीं है, देयर इज नो अटैचमेंट इन्वॉल्व. अच्छा, विद इन दिस टाइम पीरियड मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आई थी. So I went to her office. She works nights, so she works as per US times. Hmm. So I went to her office with a flower and a cake on my marriage anniversary. But her behavior was, why did you come to my office? Because what I assume is she has portrayed a very different picture in her office, and I was not allowed there. So I finished up my job and मैंने अपना जो भी मेरा वो था, क्या बोलते हैं, मैंने गिफ्ट देना था दे दिया, and then I returned back. उसके घर आया, फिर देन वी ट्राई अगेन, आई ट्राई टू कम्युनिकेट, बट इट वाज अ वेरी, शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक. बट चलिए कोई बात नहीं, मैंने अब लेट दिस कम बैक टू द डाइवोर्स पार्ट. सो मैंने 24th ऑफ February 2022 को डाइवोर्स डाल दिया. विद इन 2 days आई रिसीव्ड अ नोटिस, अ कॉल फ्रॉम SHO of Nandgram Thana, Ghaziabad, that Prashant, we your wife has come to us. आपकी वाइफ हमारे पास आई हैं और उन्होंने 498 का मुकदमा डाला है आपके ऊपर. तो मैंने उनसे बोला ठीक है सर, अब मैं क्या करूँ, क्या मतलब, आई एम रेडी टू कॉपरेट, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. उन्होंने बोला, प्रशांत आप एक काम करिए, आप हमारे पास आ जाइए और हम लोग आपसे आपकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनना चाहते हैं. मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई जस्ट कम डाउन, सो गिव मी द टाइम एंड डेट, आई विल कम ऑन दैट डेट. सो मैं गया. आई थिंक on 26th only I went. 25th 26th I went, and I went to the SHO's office. वहां पे nobody heard me. किसी ने मेरी, मतलब they were grabbing my collar, they were telling me this and that, मतलब they were trying to abuse me, harass me in a way which was not acceptable. Hmm. मुझे ये what I perceived initially was कि the policeman is calling me to hear the side of my story. बट उन्होंने स्टोरी सुनने की बजाय मुझे ही हरास करना स्टार्ट किया. और उन्होंने Okay. बोला कि तेरे ऊपर तो 498 हम कर रहे हैं, ये 41A का नोटिस है, इसे साइन कर दे. मैंने बोला, मतलब उस टाइम ना आई वॉज नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द लॉ, मुझे ज्यादा Hmm. पता नहीं था. बट नाउ आई एम लाइक वेल इक्विप्ड, लाइक नोबडी कैन बीट मी. लाइक what I think is, when you go through such journeys, right, you try to read up, you try to, you watch stuff and you educate yourself, and you try Yes. to, Yes. आप अच्छे, मतलब आप एक इन केसेस में आप एक लॉयर के लेवल पे आ जाते हो. हाँ, यू लैक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई अंडरस्टैंड दैट, बट you when you see and uh, discuss things with other people and the lawyers especially, तो एक आउटपुट निकल के आता है. सो आई एम स्टैंडिंग एट दैट फेज ऑफ टाइम राइट नाउ. एनीवे, दैट टाइम आई वाज वेरी अनअवेयर कि क्या होता है क्या नहीं होता है. उन्होंने मुझे डायरेक्टली बुलाया, पुलिसमैन ने, SHO ऑफ दैट थाना, एंड सेड हम आपके ऊपर 498 हम तेरे ऊपर 498 कर रहे हैं, ये रहा इसका नोटिस, और जा चला जा. Hmm. ठीक है, मैं वो, हाँ, दे सेड कि हम तुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, और कि अब तेरे पर कंप्लेंट हो गई है. सो व्हेन दिस कंप्लेंट थिंग हैपेंड, आई वाज शॉक्ड, ये हुआ क्या. एंड मतलब
एंड व्हेन आई सॉ द एफआईआर इन माय हैंड देयर वाज नो एविडेंस। कोई एविडेंस लड़की ने प्रोवाइड नहीं किया है, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, इट्स जस्ट वर्बल स्टेटमेंट्स। बेस्ड ऑन दैट दोस वर्बल स्टेटमेंट्स द पुलिसमैन जस्ट बिलीव्ड इट ब्लाइंडली एंड ट्राई टू हरास मी फॉर नो रीजन। हम्म और याद रखें कि मुझे बुलाया गया था पुलिस स्टेशन की टू हेयर द साइड ऑफ माई साइड, माई हम्म स्टोरी। वो नहीं पूछा गया मुझसे। और चलिए ठीक है, अब मेरे पर एफआईआर हो गई, मेरे पेरेंट्स के ऊपर एफआईआर हुई, मेरे पेरेंट्स का नाम है, मेरे फैमिली में मेरे भाई का नाम है और मेरा नाम है। मेरा भाई यहाँ पे रहता भी नहीं है, जबकि he lives like 600 to 1000 kilometers away from us, so he हम्म doesn't live with us। उसका भी नाम डाल दिया उसमें। चलिए कोई बात नहीं। अब नाउ थिंग्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। सो व्हाट हैपेंस इज, एंड ऑन टॉप ऑफ इट द पुलिसमैन वाज सजेस्टिंग, अरे द लॉयर ऑफ द गर्ल, कि आप 498 क्यों कर रहे हो आप, चलो हमने तो 498 आपके ऊपर कर दिया है, आप एक काम करो डीवी का और केस डाल दो इनके ऊपर। I was like, you are there to solve the problem rather than being an advocate and telling I mean, policemen being an advocate and telling other, suggesting people कि आप ये भी कर दो, आप वो भी कर दो. This is wrong. So this हम्म is what I saw was very, very, very like a wrong situation happening right in front of my eyes, but I couldn't do anything about it. बट चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बीतने के बाद पुलिसमैन के फोन आते हैं हमारे पास कि आपने 41A का नोटिस साइन किया, आप आइए हमारे पास और हम आप कोऑपरेट करिए हमारे साथ। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा आपके साथ। अब जब कोऑपरेट करने हम लोग गए, सो द लेवल ऑफ हरासमेंट इंक्रीज्ड, कि एक नाम हटाने का ना हम 2 लाख रुपए लेंगे। सो आप चार चार लोगों 8 लाख रुपए हमें दे दो। नाउ रिमेंबर आई टोल्ड यू बिफोर कि द गर्ल्स फादर एंड ब्रदर दे आर आस्किंग फॉर 10 लाख रुपीज, कि हमें 10 लाख रुपए दे दो और हम्म मैटर को खत्म कर। नाउ इधर पुलिस वालों के पास आए तो पुलिस वाले बोले हमें 8 लाख रुपए दे दो और हम सबके नाम हटा देंगे और चार्जशीट में डिले कर देंगे, ऐसे हमसे बोला। सो वी वर लाइक शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब nobody वी ट्राई टू, ओके सो विद इन दिस टाइम आई रोट एन ईमेल, आई हैव अ कॉपी ऑफ दैट ईमेल, आई विल सेंड यू, यू कैन पुट इट अप ऑन द स्क्रीन। मैंने महिला आयोग में ईमेल किया एंड उनको बताया पूरी सिचुएशन, मैडम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। दे रेड माई ईमेल्स मोर देन 100 times, and and the reason I know it because I have a tracker on my email uh, कुछ which शोज tells me की that कि how many कितने times बार have the पढ़ा है email has आपकी been ईमेल को, opened. हाँ। Yeah, but nobody responded to that. So that is like I have messaged in Delhi, I have messaged in Lucknow, emailed in Lucknow. Nobody responded to that. हम्म Nobody responded. And वहां से ना मुझे ऐसा लगा कि यार द एवरीबडी इज राइट कि these laws which are there they are women oriented, और men का तो कुछ है ही नहीं। है ही मतलब नहीं। हमें तो बस एक, हम लोग से पिसने के लिए बने। That's how I हम्म know everybody, कोई भी आएगा टपली मारेगा चला जाएगा, ये वाला हमारा सीन। हम्म सो कोई नहीं, सो आई स्टिल स्टार्टेड, आई मीन आई वाज लाइक कि ठीक है। अब लकीली आई हैड, when we were in this from the time period when this person has left me till the time of my marriage anniversary, when I went to her home and stayed for 2 days, when her father demanded 10 lakh rupees. So I was trying to communicate because I wanted to keep the relationship at that point of time. मुझे इंटरेस्ट था कि चलो कोई बात नहीं यार, कुछ हो गया होगा शायद, nobody knows कि बात सामने वाला इंसान कर नहीं रहा है, तो मुझे ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो आई हैव दिस, आई मीन दिस थिक list of emails, and now it has been increased to this. So I had a lot of proofs with me, and I tried to give those proof to द पुलिसमैन देयर कि लुक, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो हमेशा बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो अपना रिलेशनशिप सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट द पुलिसमैन डिडंट हियर मी, तो कुछ उन्होंने भी नहीं सुना। फिर मैंने वहां से एक्शन लिया। मैंने ये सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये एसएचओ सर नहीं सुन रहे हैं, ये जो आईओ सर हैं वो नहीं सुन रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गो अ लिटिल, महिला आयोग नहीं सुन रहा है, हम्म मिनिस्ट्री नहीं सुन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गो अ लिटिल स्टेप अहेड, लेट मी गो टू द पुलिस के इंचार्ज एसएसपी गाजियाबाद। हम्म मैं एसएसपी गाजियाबाद के पास गया। सर ने मेरी प्रॉब्लम सुनी और मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी। उन्होंने क्या किया, वो केस को ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज इवन आई थिंक व्हाट ही आल्सो फाउंड दैट द केस वाज dubious in nature. हम्म Now, अब सुप्रीम कोर्ट के और अलाहाबाद, आई मीन आई लिव इन दिल्ली एनसीआर एज आई सेड, तो यहाँ पे और जहाँ पे मेरे पास केस हुआ था, दैट इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि कभी भी कोई भी मैट्रिमोनियल इश्यू होता है, द फर्स्ट थिंग द पुलिसमैन इज सपोज टू डू इज टू गो फॉर मीडिएशन, हम्म send the file for mediation in the either to a separate entity or in female women cell, women crime against women department. Unfortunately, in my case, nothing such incident has never happened. डायरेक्ट एफआईआर कर दी, और बिना कोई मीडिएशन के, बिना किसी के. व्हाट आई फील हियर इज देयर हैज बीन, ये मेरा assumption है, I'm not sure about it, that the even the policemen probably has been, they have been corrupt officers. That is what I हम्म. assume. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सब लॉ को बाईपास करा और डायरेक्ट एफआईआर कर दी. पता नहीं क्यों कर दी, आई डोंट नो. Without एंड टिल, investigation. Without विदाउट इन्वेस्टिगेशन, investigation. विदाउट हेयरिंग द साइड ऑफ माई स्टोरी, हम्म. स्टोरी ऑफ माई साइड, कोई, चलिए कोई बात है. एंड यू वोंट बिलीव अंतरा, टिल डेट इट हैज बीन February 2022 में मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी. आज मार्च 2023 चल रहा है, आज तक उस एफआईआर पे कोई भी चार्जशीट नहीं डली. ओके. कोई भी, मैंने बहुत आरटीआईज भेजी हम्म. कि मुझे ये दिया जाए, उसका जो आपने विमेन सेल में जो हमारी काउंसलिंग करवाई, जो नहीं करवाई थी, कि हम्म. उसके उसके बारे में बताया जाए कि किस डेट को करवाई थी, अगर आपके पास प्रूफ है, साइन है, तो वो दिखाया जाए मुझे. हम्म. आरटीआई का रिस्पॉन्स ये आता है कि केस चल रहा है, और इसमें सारी सब तरीके की जांच जैसे चलता है, जो उनके नॉर्म्स हैं वैसे चल रहा है. बस दैट्स इट, वन तो आपको लाइनर. डेट्स नहीं दिए गए कि इस डेट पे आइए मतलब कोर्ट में? नहीं. तो 498 में मेरे पर आज तक, अगेन एज आई सेड, कि इसमें 1 साल से ऊपर हो गया, आज तक कोई चार्जशीट नहीं डली है. जब ओके. चार्जशीट नहीं डलेगी तो वो हम्म. कोर्ट में प्रेजेंट क्या करेंगे, हम्म. क्योंकि तो उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है. इट वाज अ फॉल्स कंप्लेंट एंड दे हैव नॉट फॉलोड एनी लॉ व्हिच हैज बीन गाइडेड by honorable high court of Uttar Pradesh, which is Allahabad High Court, and honorable Supreme Court of India. They have not हम्म. followed any guidelines. वही है ना कि if they put down a charge sheet, my first question will be कि आपने मीडिएशन करवाया, वो करवाए, ये आज की गाइडलाइंस थोड़ी ना है, ये तो जिस दिन एफआईआर हुई है उससे 2-3 साल पहले की गाइडलाइंस है. और आप हम्म. बिना गाइडलाइंस फॉलो करे ही वो करे, तो उनकी तो नौकरी पे बात आ जाएगी. सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रियली उसको आगे बढ़ाना. हम्म. उसको हॉल्ट पे रखा हुआ है अभी. अब इसी बीच में May 26 आई बिलीव मेरे ऊपर डीवी की कंप्लेंट होती है डायरेक्टली कोर्ट में. और इस कोर्ट में अगेन फॉल्स एलिगेशंस. आई मीन, if you really read that 498 का context, and if you really read the domestic violence का context, it is, when I read it, it's very funny initially, but it is it is in a manner where it can put me into trouble, a lot of trouble. But and the best part is, all the allegations that has been made, that has been framed by either by the advocate or by my former wife, everything is so false and they can't sustain any evidence. It is so funny in nature. हम्म. And when you read it, it's just, for example, all these FIRs and all these, I mean, especially matrimonial cases, the content of all of these is quite same. Now, we never had, I mean, within the course of time that we stayed together, we stayed for about 3 months. इन 3 महीने में आज की डेट तक हमारा कोई बेबी नहीं है. हम्म. बट देन द एडवोकेट of the advocate is from my former wife's side. She's asking maintenance that we have kid, kindly provide me child support. ओके. So that is the level of writing. That is the funny nature of the uh, DV case. And there are multiple other points which are very funny in nature, but they are being accepted by the court and they are not being heard. उस पे कोई सुन नहीं रहा है, उस पे कोई बात नहीं. आई मीन, सब ऐसे ही है कि हाँ, बस कि कोई फीमेल कंप्लेंट लेके आती है, उसको एक्सेप्ट. एंड बाय द वे, सो आई हैव ऑब्जर्व दिस, आई बीन गोइंग टू कोर्ट. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर कमिंग टू द कोर्ट विद ऑल दिस जेनेरिक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस. हम्म. If they look a little, like, if they're not educated, if they appear very downtrodden, I mean, they come from a very low level from in the society, they are not being entertained at all. ओके. उनको सब गाली दे के बात करते हैं, उनको सब हम्म. लात मार के भगा देते हैं.
बट हाँ, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अच्छा बन के आ रहे हो कोर्ट में, और हम्म आपके पास थोड़ा बोल्ड नेचर है, तो और आपके, बाय द वे, आपने वकील अच्छा किया है, तो कोर्ट सुनता है आपकी बात। ये हमने भी बहुत सारी जगह में सुनी है कि एक्चुअली जो एक्चुअल विक्टिम्स है ना, फीमेल विक्टिम्स, हम्म। उनको वो जस्टिस मिल ही नहीं रही है। ऊपर से जो मतलब अच्छे घर की लड़कियां हैं जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है लेकिन वो बस पैसा ऐंठने के लिए आ गई है, तो उनकी हम्म। बातें सुनी जा रही है और केस खींचे जा रहे हैं 8 साल, 9 साल, 10 साल, जबकि वो फॉल्स केसेस, एविडेंस नहीं है। बट वी हैव कोई सीन एविडेंस मेनी नहीं। सच केसेस दैट without evidence they are dragging the case and the judge is also dragging the case. He's not giving any kind of proper judgment. So this is something very unfortunate and terrible, Now honestly I really, speaking. now I really want to tell you a story that has happened with me, Antara. So now, as I said, कि जब initially सब चीजें start हुई मेरे साथ, तो I was not very educated Hmm. in this frame of things. But now जब चीजें हुई मेरे साथ, जैसे Hmm. कंप्लेंट हो गई 498, तो मैंने अपने आप को एजुकेट करना स्टार्ट किया। Hmm. अब मेरे पास डीवी का केस होता है। नाउ आई वांट टू टेल यू एन एग्जांपल अबाउट माय डीवी केस। मैंने आपको 498 का तो बताया कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या। Hmm. Hmm. नाउ अब डीवी का केस होता है। ये पहुंची बात गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, Okay. मजिस्ट्रेट सर के पास। Hmm. इन्होंने बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, लड़की की एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ली। अब नाउ अगेन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, Hmm. इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब भी there has been judgments and there has been landmark judgments within this area, and one of which is Rajneesh versus Neha। Yes, yes. Rajneesh उसमें versus ये Neha. बोला गया है कि कभी भी कोई भी कंप्लेंट, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट आ रही है, एंड इफ यू आर आस्किंग फॉर मेंटेनेंस इन दैट, एंड बाय द वे माय वाइफ वाज आस्किंग 80,000 रुपीस फ्रॉम मी monthly in Monthly that maintenance. maintenance, and she was asking one time, like, give me 5 lakh rupees separately, and after that 5 lakhs give me 80,000 rupees monthly। Monthly, monthly. हाँ हाँ हाँ. Hmm. सो अब मैं कोर्ट में गया, मैंने कोर्ट में बात करी, देखा। मेरे मेरे वकील साहब आए, मेरे मेरे जो वकील साहब थे, मैंने गया उनसे बात करी, एंड द पर्सन दैट आई hired initially, I was not really satisfied with his practice। सो Hmm. मैंने सोचा कि यार, ये एक काम करते हैं प्रशांत, लेट्स फाइट योर केस बाय योरसेल्फ। तो मैंने पार्टी इन पर्सन की एप्लीकेशन दी, एंड आई स्टार्टेड फाइटिंग माय ओन केस। Okay. I started defending my own case, fighting my own case, because I really wanted to do these things, because I thought कि अब मैं पढ़ ही चुका हूँ इन सब चीजों में, तो why not, and who will be Hmm. the better person to really explain the story from Absolutely. my Hmm. side। So Hmm. that is what I've decided। मैं गया कोर्ट में, पहले डेट में अपने वकील साहब के साथ। वकील साहब ने मेरे ऊपर 500 रुपीज का फाइन लगवा दिया। Okay. क्योंकि रीजन उनका ये था कि लड़की ट्रैवल करके आती है, और इसको फाइन मिलना चाहिए, इसको मुआवजा मिलना चाहिए, इसको Hmm. कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए। लकीली मैंने, आई वॉज वेरी अपसेट कि यार कुछ बातचीत है नहीं, कोर्ट केस स्टार्ट हुआ नहीं है, एंड सडनली वाई वाई शुड आई पे 500 रुपीज। आई मीन, मतलब वो एज अ ट्रैवलिंग मैटर एक्सपेंस भी आपको देने के लिए बोल रहे हैं? as a matter of fact, I was traveling about, I was spending 2.2 thousand, 2.5 thousand approximately to travel, and Hmm. she only had to pay about 150 to 100 even not 10 to 50 rupees probably, give me one second, Okay. 10 to 50 rupees to reach the court, and she was Hmm. asking 500 from me। Hmm. फिर जज साहब ने बिना सुने, बिना वो करे, ऑर्डर कर दिया कि आप एक काम करिए, आप 500 रुपये अगली डेट पे इन्हें ला के दीजिए। Hmm. फिर मैंने वो एप्लीकेशन पढ़ी, कोई बात नहीं, मैं आई वेंट टू, फिर नेक्स्ट डेट पे आई डिश्ड माय लॉयर, एंड आई Hmm. स्टार्टेड फाइटिंग माय ओन केस। फिर मैंने Hmm. जज साहब को बताया, जज साहब देखिए ऐसा है कि मजिस्ट्रेट सर थे वो, कि जब भी आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, सी मैं, Hmm. आई एम नॉट अ लॉयर, और मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो मैंने इतना सीखा नहीं है। जितना मैं पोलाइटली उनसे बात कर सकता था, जितना मैं तरीके से उनसे बात कर सकता था, उतना मैंने ट्राई किया। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे बोला, सर, कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होता है उसमें, और स्पेशली मेंटेनेंस के लिए बोला जाता है, तो उसमें आपको रजनीश और नेहा का इनकम इनकम एसेट और लाइबिलिटी का एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। Hmm. तो तो जज साहब ने मेरी शक्ल देखी थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने बोला कि दूसरे लॉयर, जो मेरी फॉर्मर वाइफ के लॉयर थे, उनसे बोला कि आप एक्सेप्ट करती हैं इसको। अब मुझे नहीं पता कि वेदर गाजियाबाद कोर्ट में इसकी प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती है, और कि सिर्फ सब घोड़े बकरी गधे सब एक ही बराबर है। आई डोंट Hmm. नो।
and I was the one who was trying to ask कि भाई ये सब हुआ है, प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस। तो उन्होंने लकीली मेरी सुनी बात और उन्होंने ऑर्डर कर दिया और वहां पे ₹500 खत्म हो गए, जस्ट बेस्ड ऑन लिटिल एजुकेशन। सो मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिनके ऊपर भी ये केसेस चल रहे हैं, प्लीज परेशान मत होइए। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और इक्विप कर लीजिए कि आप सामने वाले से बात कर सकें और कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको, मुझे ये बोला गया है, गूगल, मेरे बहुत बहुत लॉयर्स ने बोला है मुझसे, ये देखो गूगल की नॉलेज लेके आ जाते हैं, इनको क्या पता क्या हो। सो हम्म आपको बहुत डिस्करेजमेंट्स मिलेंगे, आपको हम्म बहुत लोग गालियां भी देंगे मुंह पे, बट डू नॉट गेट डिस्करेज। यू नो योर मैटर। आपको आपसे अच्छा उस मैटर के बारे में किसी को नहीं पता है, बट थोड़ी एब्सोल्युटली। सी उसमें एजुकेशन ले लीजिए। हम्म एजुकेशन भी कैसे लेंगे, आप आईपीसी पढ़िए, लॉस पढ़िए, जो भी आपके ऊपर सेक्शंस लगे उनको पढ़िए, उनको समझिए। और अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, यूट्यूब करिए, हम्म। समझिए उनको। ये बहुत एक अच्छे, आजकल आजकल हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम खुद सेल्फ लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। सो सो एनीवे, सो मूविंग ऑन, हमें फिर जज साहब ने ऑर्डर करा। ऑर्डर करने के बाद अ, वो इनकम एफिडेविट लेके आई। 2-3 डेट तक तो उन्होंने डिले करा। हम्म जब वो इनकम एफिडेविट लेके आई, उसमें सब कुछ छुपा के रखा था। मतलब इट वाज लाइक अ टोटल फॉर्जरी दैट दे हैव डन। दे हैव कंसील्ड इंफॉर्मेशन, दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एक्चुअल व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड वाज हम्म सैलरी स्लिप्स। देयर वाज नो income tax return that was provided by the person. There was no 3 year ka bank statement before marriage and after marriage, that was not provided. What they tried to do was misguide, mismanipulate the court, and court did not even recognize this fact. हम्म सबसे बुरी बात तो ये है कि ठीक है, आप फीमेल ओरिएंटेड लॉज हैं, आप फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, करिए, करना भी चाहिए, बट देन जो सामने वाला बंदा अगर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे भी तो रिकॉग्नाइज करिए। दे वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट। और उसी दिन जब मैंने ये बोला उनसे ये चीज, आप बिलीव नहीं करेंगे अंतरा, देयर वाज दिस झुंड ऑफ लॉयर्स जिन्होंने मेरे पर अटैक किया ओके। कोर्ट रूम में। जो पेशगार थे जज साहब के, उन्होंने बोला कि मेरे मेरे जज से ऐसे कैसे बात करते हो? मेरा कॉलर आके पकड़ा, दे ग्रैब्ड माय शर्ट एंड दे ट्राइड टू थ्रो मी आउट ऑफ द कोर्ट। लकीली आई आई वहां पे कैमरा लगे हुए थे, किसी ने हम्म कुछ मार पिटाई नहीं करी। जज साहब ने, पता है मुझसे क्या बोला? मैंने बोला, सर देखिए, आइए, आपके सामने ये क्या हो रहा है, जस्ट इन राइट इन फ्रंट ऑफ हिम दैट वाज हैपनिंग। जज हम्म। साहब ने पता है क्या बोला? जज साहब का रिस्पॉन्स ये था, सोसाइटी का रिस्पॉन्स ये था, जो मेन एक गवर्निंग बॉडी है उनका response ये था कि मैं चाहूँ ना, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अभी, अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं बाहर जाके ये लोग भूत बना देंगे, मार डालेंगे। और बस इतना बोला उन्होंने। मैंने फिर उनसे एक लाइन बोली, जज सर, अगर मैंने अपनी एमएलआर करवा ली इसके बाद जाके, और मैं मेडिकल करवाया, तो और आपके सामने ये इंसिडेंट हुआ है, तो शायद प्रॉब्लम मेरे तरफ से ज्यादा नहीं बढ़ पाई और कहीं और प्रॉब्लम हो सकती। सो मेरा हम्म रिस्पॉन्स ये था। फिर मैं जज साहब के पास दोबारा गया। जज साहब ने बोला कि मैं तुम्हारा केस ना, मेरे पास कलम है, इस कलम से 1.5 साल लटका दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे मुंह पे बोला, सब पब्लिकली बोला। ओके। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बाय द टाइम नेक्स्ट डेट तक जब हम लोग गए, हम मुझे पता लगा कि मेरा मेरा केस दूसरे कोर्ट में गए ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर हो गया है, हम्म ट्रांसफर कर दिया गया है। सो लकीली मुझे वो हैरेसमेंट जो मुझे उस दिन झेलनी पड़ी, वो दोबारा नहीं झेलनी पड़ी। उसके बाद जो दूसरे कोर्ट में मेरा केस गया, वहां पे 2 बार, दो जो पहली डेट लगी, जज साहब उसमें अवेलेबल नहीं थे, छुट्टी पे थे। दूसरी डेट लगी, फिर भी अवेलेबल नहीं थे। मतलब कंटिन्यूअसली 3-4 डेट तक वो अवेलेबल नहीं थे। और जब तक अवेलेबल हुए, तो तब तक मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था। मैंने अपने जो पिटिशन सामने वाले की तरफ से आए थे, उसमें इतनी खामियां ढूंढ ली थी, निटी ग्रिटी में गया था उसकी मैं। और प्रॉपरली उनके ऊपर मैंने 340 का केस, आईपीसी 340 का केस डाल दिया था। हम्म बट ट्रस्ट मी अंतरा, इवन फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ लॉ, एंड व्हेन यू फॉलोइंग इट रिलीजियसली, अच्छे से आप तमीज से फॉलो अप कर रहे हैं, तब भी सामने वाला बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है आपकी बात। हम्म। आपको, मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा सुने। मुझे नहीं समझ में आता। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन लॉ They're फॉर not at मैन। all listening to the to his side of the story. Only नो, woman's side will be heard, and then they will decide whatever they एंड want to. इट इज अ कर्स। आई मीन, Hmm.
जब हमारी यंगर जनरेशन ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर, ये सुनेगी तो उनका तो यार शादी से वो ही उठ जाएगा ना। बिलीव ही उठ जाएगा। इट्स बेटर टू लिव इन विद समबडी एंड ट्राई टू स्पेंड, जब तक हमारा टाइम कट रहा है तब तक रहो। और हम्म। क्योंकि देर इज, उसके बाद शादी कर लेंगे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या पता हमारे पर भी ये सब परेशानी से हमें भी गुजरना पड़े। बिकॉज एज यू सेड कि सो आपको पता ही नहीं कि ये सब क्यों हुआ, यू हैड नो क्लू कि ये हो कहाँ से रहा है, मैंने क्या कर दिया ऐसा। एग्जैक्टली आई तो अब एंड क्या ही एंड जवाब देंगे कि क्यों हो रहा है ये सब। एंड आफ्टर ऑल दिस आई स्टिल एंड मैंने कभी भी कम्युनिकेशन अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। हम्म। मैंने हमेशा जो मेरी जिनसे मेरी शादी हुई थी उनको हमेशा ईमेल, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से हर जगह से ब्लॉक करके रखा है। फोन कॉल्स मैं कर नहीं सकता हूँ, बट हाँ मैं टेक्स्ट मैसेजेस भेजता हूँ तो उसमें डिलीवर्ड का ऑप्शन आता है, तो मुझे पता लगता है कि डिलीवर हो चुका हम्म। है, रिसीव हो चुका है। बट उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 2021 से मैं टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, एक रिस्पॉन्स नहीं आया है। ओके। ईमेल्स कर रहा हूँ मैं, बस लिटरली इतने इतने, इफ आई रियली टेक आउट द प्रिंट आउट दे विल बी दिस मच। दो बट तीन नो साल के, रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, एंड नो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स लाइक व्हाटसोएवर। रिएक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स जब ये केस हुआ आप पे? तो उनका क्या रिएक्शन था? आपको सपोर्ट मिला या उन्होंने आप ही को ब्लेम किया? They were okay. So let me talk about my friends first. So I do not have much friends in my life. So I have some खास friends जिनके ओके। साथ मैं शेयर करता हूँ. हम्म। When I when I tried to share my things with them, आधों का रिस्पॉन्स ये था कि यार अ, तेरे ऊपर तो इतना एक्सट्रीम केस हो गया, बट वी ऑल्सो फेस द सेम थिंग इन अ मैरिड लाइफ। हमारी बीवियां भी धमकियां देती हैं हमें। और जो लोग सिंगल थे उनको ये चीज समझ में नहीं आई। उनको उनको उन्होंने उन्होंने अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, निकल जाएगा, बात हम्म। करके देखो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मतलब सी द थिंग इज व्हेन nobody will understand the depth of इंटेंसिटी। it unless या। intensity of it and depth of it unless somebody is really going through the situation. हम्म। तो इट इज, लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं। और रही बात रिश्तेदारों की, relatives की, so I would divide them in two categories, good relatives and jealous relatives. jealous relatives हैं, they were very happy कि इनका फैमिली डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड हम्म। इट्स अ वेरी गुड थिंग, होना चाहिए। एंड उन्होंने भी वहां से, अच्छा जब आपके अब जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही होती है ना अंतना, तो आपको पता लग जाता है हु इज विथ यू एंड हु इज यस नॉट। यस। हम्म। रियलिटी चेक तो मिल जाती है उस रियलिटी टाइम पे। चेक मिल जाता है। तो जब रियलिटी चेक मिला तो आधे लोग तो ऐसे ही गायब हो गए, और जो बचे कुचे थे उन्होंने, दे ट्राई टू सपोर्ट अस, दे ट्राई टू, मतलब द नंबर वाज लेस, द सपोर्टर्स वर लेस कंपेयर हम्म। टू द पीपल शुड लाइक, जैसे करना चाहिए वो, हम्म। उसका सपोर्टर्स का नंबर कम था। हम्म। तो या दैट वाज फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जैसे कि आपने तो कहा कि फ्रेंड्स और फैमिली से लाइक उतना सपोर्ट नहीं मिला आपको, नहीं, एक्सेप्ट मे बी फ्यू, और पुलिस ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको हरास किया और जो विदाउट जेलस लिसनिंग। रिलेटिव्स थे ना, बाय द हाँ सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी आई एम डिस्टरप्टिंग यू, तो नहीं, यस जेलस यस। रिलेटिव्स थे, दे हम्म। एक्चुअली टुक द साइड ऑफ द अदर पर्सन। ओके। ये भी बट दे हुआ। डिड नॉट नो, आई थिंक दे हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ, लाइक उनको तो पता नहीं था कि एक्चुअली क्या they हुआ क्या नहीं हुआ। everybody, so my former wife was in contact with some of the people, हम्म। तो उनको सब पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके ओके। तो तो they were like ठीक है, we are with you, don't worry. I mean, that is where we got a reality check. We were there talking to them, we were inviting them to functions and all that, but then when the real trouble came on to us, trouble क्या है, झूठे cases, it's not a trouble, it's just waste of time honestly. हम्म। um, जब पता लगा तो फिर ऐसे लोगों को हटाया अपनी लाइफ से। अब देर इज नो कॉन्टैक्ट विद देम एंड हम्म। आई, ऐसे लोग उस टाइम पे ना आप परख सकते हो, आप देख सकते हो। हम्म। सो दिस इज द टाइम दैट वी गॉट टू नो कि हु इज विथ अस एंड हु इज नॉट। बिल्कुल। एंड आपके पेरेंट्स का क्या कहना था, आपके पेरेंट्स का, आपके ब्रदर का, जब ये सब हुआ, उनका सो रिएक्शन? दे वर शॉक्ड, दे वर शॉक्ड अगेन एज आई सेड कि it was a very funny situation when my parents actually read the petitions. They were like yaar, वी वर द वन कि जिन्होंने इतना सब पैसा खर्च किया, इतना सब किया, एक अच्छे मिडिल क्लास घर की लड़की लेके आए। वी वर द वन who were rather giving the money to her parents. I mean, not giving the money to her parents in the sense कि हम उनको सपोर्ट करते, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब हर, so my wife's father is a pastor and he doesn't come from a very wealthy sort of background. So ओके। जब भी हमारे उसमें कोई आता है, मतलब हम्म। हमारे घर पे कोई ऐसे कोई आते हैं,
तो हम उनको थोड़ा सा एक just to in terms of respect, we roll a little money in our envelope and just give it to them as thanks. हम्म सो हमने ऐसे सपोर्ट किया उन लोगों को. सो बर्थडे था मेरी वाइफ का 13th of February को 2021 में. उनको we took her out in a very posh location in गुड़गांव. वहां पे उन्हें आईफोन गिफ्ट किया, मतलब बहुत कुछ किया. एंड व्हेन माय पेरेंट्स एंड द ब्रदर रेड दैट थिंग, they were laughing कि क्या है यार ये, मतलब आजकल आप किसी लोगों पे, मतलब मैं पेरेंट्स 60+ नाउ. एंड ओके. मतलब आप किसी के लिए कितना भी कर लो, एंड में आपको बुराई मिलनी है. बुराई सो मिलता है. उनके लिए तो This लाइफ is the लेसन था harsh उनके लिए. reality of life actually, Prashant, because I have हाँ. seen this in normal relationships also कि आप किसी के लिए कितना भी कर ले expectations खत्म नहीं होते हैं. जब भी आपसे एक mistake हो, शायद होती भी नहीं है, but then you will be at fault and then you have to suffer. That happens. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड दैट्स अबाउट इट. आई मीन माय पेरेंट्स एंड ब्रदर का रिएक्शन वाज कि हमने तो इतना हेल्प किया, सपोर्ट किया, और आपने हमें ही नहीं छोड़ा कहीं का. तो दे आर लाइक ठीक है, अब हो गया, अब देखते हैं बाय द कोर्स. आई मीन इवन दे ट्राइड टू कांटेक्ट माय फादर, tried to contact the father of the girl, and so by the way in all this from 27th of March 2021 till Hmm. date, आज 19 March 2023 में, these people, either the girl, her brother, or the father, they never tried to approach us to solve the matter. Never. मतलब उनकी तरफ से एक कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया. Nothing at all Nothing. in this one Nada. year. Nothing. Nothing. Zero. एंड आपने जो डिवोर्स फाइल किया था उसका भी कोई जवाब नहीं आया, कुछ हुआ नहीं उस चीज उसका, का? अच्छा, डाइवोर्स की बात मैं आपको एक बात बताता हूँ. अब लेट मी फिनिश माय सेंटेंस. सो मेरे फादर ने अभी रिसेंटली उनको कॉल किया था कि भाई क्या चल रहा है, मैं लेट्स सॉल्व द मैटर एमिकेबली, लेट्स सिट डाउन द टेबल. बट हम्म. उन्होंने एक बार फोन उठाया और बोला कि ठीक है, लेट्स सॉल्व इट आउट, बट हम वी वांट टू सिट विद द लॉयर्स. दैट्स अबाउट इट. ओके. सो माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन कि हम लोग साथ में पहले पहले हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं अभी लॉयर्स की क्या जरूरत है. पहले हम लोग हम्म. अपना मैटर सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ जो हम वट एवर विल डिसाइड, हम्म. वो हम लॉयर्स को बता देंगे, लॉयर्स अपना कर लेंगे. बट दे आर एडमेंट अबाउट कि नहीं नहीं, हमें तो लॉयर्स के साथ बैठना है, बिकॉज व्हाट दे एट द एंड दे व्हाट दे आर आफ्टर इज मनी. And they want to frame because now as they have filed a lot of cases on us, हम्म. they have spent a lot of money too, and now they want to extort that amount of money from us. हम्म. तो ये उनका उनका प्लान है. So sorry, I can you please ask me the question again? यस, आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट योर डिवोर्स कि आपने जो फाइल किया था पहले, तो उसका क्या हुआ है, उसका कोई अपडेट या? So so divorce is also another funny part. Divorce में क्या हुआ अंतरा कि I filed that on 24th of February 2022. After when I tried everything possible, legal notice भेज दिया, communicate करने का कर दिया, कोई response नहीं आया, तो मैंने थक हार के डाइवोर्स को डाल दिया. हम्म. डाइवोर्स में 6 6 महीने की डेट्स मिलती हैं. ओके. डाइवोर्स में, एंड इंस्टेड ऑफ, पहली डेट पे मैं गया, उन्होंने जो वहाँ के फैमिली कोर्ट के जो जज साहब थे, हम्म. उन्होंने देखा मैटर. अगेन वहां पे भी डाइवोर्स मैंने डाला है, मेरे से नहीं पूछा, सामने वाले पार्टी से पूछा, मेरी फॉर्मर वाइफ से कि आप लोग क्या हम्म. चाहते हैं. उन्होंने बोला कि, उनसे जब ये पूछा ना कि आप चाहते क्या है, तो उन्होंने वहां पे बस, उनकी ना एक कैसेट है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो, मतलब ऑल ऑल लाइज, ऑल लाइज. दैट इज हम्म. व्हाट दे. सो व्हाट जज डिसाइडेड कि आप एक काम करते हैं, हम ना इस मैटर को मीडिएशन में भेजते हैं. दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमारा मीडिएशन हुआ. हम्म. विद इन डीवी में कोई मीडिएशन नहीं हुआ, 498 में कोई मीडिएशन नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हो रहा था. आई मीन हमारा पर्सनल भी नहीं हो रहा था. तो वहाँ के जो जज साहब थे, फैमिली कोर्ट फरीदाबाद के, सॉरी, सो फैमिली कोर्ट के जज साहब थे वहाँ पे, उन्होंने मीडिएशन के लिए भेज दिया हमें. सो हम्म. मीडिएशन के बाद शी अपेयर्ड ऑन द फर्स्ट डेट. और अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ी स्ट्रेंज बात है अंतरा, कि जो मीडिएटर्स होते हैं ना, दे आर दे आर नॉट दे आर नॉट आफ्टर सॉल्विंग द मैटर, दे आर वेरी टाइम कंस्ट्रेंट. और उनको ऐसा लगता है कि there so the mediator gave me three options: either you live with the person, or you pay her some amount, or you mutually end it. हम्म. These were the three options that were given to me. And my intention was, okay, अगर हम इतने दिनों के बाद टेबल पे बैठे, let's solve the matter. तुम्हारी क्या grievances हैं, मेरी क्या grievances हैं, let's come हम्म. down and talk about it. So यस. there was no support from the mediation center in that manner.
मीडिएशन सेंटर ने कोई ग्रीवेंस को सॉल्व करने का वो नहीं किया, बट एक अपना सिर्फ यही जताया कि आप या तो पैसे दे दो या तो म्यूचुअली खत्म करो, हम्म और अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो मेरिट पे डाइवोर्स केस लड़ो। ये था मीडिएशन सेंटर का आउटकम। सो हम्म एंड देयर वाज अ टाइम मी एंड द पर्सन आई मैरिड वी वर टॉकिंग, मीडिएटर उठ के चले गए और ओके बस हम दोनों बात करते रहे। दैट वाज द गुड पार्ट वेयर वी वर टॉकिंग एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व अ मैटर, बट देयर केम अ पॉइंट कि शी स्टार्टेड लाइंग, whatever her that is whatever her advocate and the lawyer has fed into her brain, that was the thing that was that she is like, she's speaking. And I told her very clearly, look, you know, what is truth, you know what is a lie, and right now you know you are lying. So if you really want to lie, then I really cannot win any argument before हम्म this. So I think it's better I just take it off. I'll give you another opportunity right now. Let's talk it out and solve the matter. But then she destroyed all the opportunities that has been given by me, and she was speaking her lawyer's language and destroyed the communication altogether. ओके और फिर उसके बाद वहां मीडिएशन फेल हो गया। नेक्स्ट 2 डेट और पड़ी मीडिएशन की, उन्होंने वो भी उन्होंने फेल कर दी, वो शी डिड नॉट अपेयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। सो हम्म बस दैट्स मोर लाइक इट कि अभी राइट नाउ जो डाइवोर्स का सीन है दैट इज 6-6 महीने की डेट मिलती है उसमें, और 6-6 महीने में राइट नाउ दे आर ऑन द रिटन स्टेटमेंट का स्टेज वेयर दे नाउ दे हैव टू गिव अ रिटन स्टेटमेंट। So I filed this on 26th of February, sorry 24th of February 2022, और अभी मेरी रिटन स्टेटमेंट वाली डेट है 24th of May में 2023 को। That ओके is the status. It's a very gradual and a very slow process, and it वेरी is स्लो it is very प्रोसेस frustrating. दैट्स द रीजन कि यहाँ पे केसेस इतने लंबे लंबे खींचे जाते हैं दैट्स द रीजन जी। ये डेट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इशू है हम्म। और आपका जो हम्म। ये डोमेस्टिक वायलेंस 498A का जो केस चल रहा है तो उसका अभी लाइक व्हाट इज द पोजीशन लाइक क्या स्टेटस है उसका लाइक वो जस्ट रुका हुआ है क्या 498 का कोई पोजीशन नहीं है। It has been more than 1 year. The charge ओके sheet has not been filed in the court. हम्म और जो whatever I can do in my power to get that thing out of my way, हम्म I'm doing that right now. ओके So there is no अभी 498 का कुछ चल नहीं रहा है because there are no evidences. और हम्म जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, because I have done my little research and हम्म जो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करी और उसके बेसिस पे एविडेंट पढ़ाई लिखाई करी, उसके बेसिस पे मैंने काफी फ्रॉड्स ढूंढे उनकी हम्म एप्लीकेशन में, और हम्म उनके ऊपर 348 के केसेस अभी डाला है, अभी उस पे सुनवाई होना बाकी है। ओके सो बेसिकली ये है कि द थिंग इज, आपको कोई भी फंसा सकता है, ये सब विमेन ओरिएंटेड लॉ है हमारी कंट्री का, बट देन इफ यू आर एजुकेटेड इनफ, आप सामने वाली पार्टी को अच्छे से वो कर सकते डेफिनेटली डेफिनेटली तो प्रशांत लाइक व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर आवर ऑडियंस हैं। Okay, yes, I have a very clear message for the people who are going through 498A, domestic violence, fake rape charges, and I don't know, there are plenty. मुझे सिर्फ दो से अभी पाला पड़ा है, तो मैं ज्यादातर दो के बारे में बोलूंगा। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा लोगों से कि हार मत मानिए, आप अकेले नहीं हैं। शायद आप जहाँ पे रहते हैं ना, 4 घर छोड़ के उनके ऊपर भी हो रखा है। बिल्कुल तो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। हम्म It is a, and even Supreme Court, High Court, they're aware of it, but unfortunately they're bound. वो इस चीज को, लॉ में वो बाउंड है, वो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, आप अगर थोड़ा कॉन्फिडेंटली और अच्छे से अपना पॉइंट रखेंगे तो आपकी लोग बात सुनेंगे। परेशान मत होइए। आई अंडरस्टैंड, परेशान इट्स होना, ये सामने वाली पार्टी जो भी करती है वो आपको परेशान करने के लिए करती है। परेशान होंगे तो वो और उनको ताकत मिलेगी। परेशान मत होइए, आप खुश रहिए अपनी लाइफ में, और अपनी तरफ से कम्युनिक अनटिल एंड अनलेस आपके ऊपर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कोर्ट से या फिर पुलिस स्टेशन से, तब कांटेक्ट मत करिए, बट अपनी तरफ से इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, अगर आप रियली चाहते हैं उनको अपने घर पे लाना और मैटर को सॉल्व करना, सो दैट इन अ वे यू विल बी एबल टू गैदर सम एविडेंस ऑल्सो, एंड वो एक पॉजिटिव साइड को रिफ्लेक्ट करेगा कि ठीक है, आप सॉल्व करना चाहते हैं मैटर। अगर सामने वाला बंदा नहीं करना चाहता, एटलीस्ट आपके पास वो पावर है कि आप वो कर रहे हो।
क्योंकि हम्म। मैंने विद इन दिस 2-3 इयर्स के टाइम फ्रेम में मैंने ऐसे काफी लोगों से मिला हूँ जहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है। मुझे भी ये बहुत एडवाइस मिली है कि लॉयर्स से मिली है, फ्रेंड से मिली है, और लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, कि जस्ट स्टॉप कम्युनिकेटिंग। बट मेरा मानना ये है कि व्हेन यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग देन यू आर एंडिंग एवरीथिंग। आपको एंड में सब कुछ एंड करना ही है, तो एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करके एंड करिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, कम्युनिकेशन मत ब्रेक करिए, मगर हाँ, अगर आपने सोच लिया कि मुझे अब इस इंसान को नहीं रखना है, तो फिर वो आपका चॉइस है। बट हाँ, बोल्डली इस चीज को फेस करिए। ये लॉन्ग बैटल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी करके इसे 2-3 महीने में निपटा दूंगा, तो ये नहीं होने वाला है। हम्म। ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रिपेयर योर माइंड फॉर गुड 5 years एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट। 5 years तो आपकी लाइफ के अब खराब हैं, सही है नहीं बोल सकते, बट मेरी नजर में तो 5 साल खराब है। आप सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश ये कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा भी टाइम खराब हो रहा है, हमारा भी टाइम खराब हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, तो आप उनके साथ जाके लाइफ जिए, खत्म करें, दूसरे इंसान को क्यों परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो प्लीज अगेन कम्युनिकेट, टॉक। सो विदाउट कम्युनिकेशन चीजें विल नॉट रिजॉल्व। और अगर सामने, जैसे मेरे केस में, सामने वाला बंदा इज टू एडमेंट टू रिप्लाई, बट हम्म। फिर भी आई गिव माई बेस्ट, एटलीस्ट आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम एबल टू मैं फ्री रहता हूँ। मेरी बॉडी में या मेरे दिमाग में कोई बबल नहीं है जो एक टाइम पे आके फट जाएगा। हम्म। मैं उस एनर्जी को इजिली रिलीज कर पाता हूँ, जो मेरे थॉट प्रोसेस है। सो मैं इस चीज से काफी खुश हूँ कि एटलीस्ट आई एम नॉट दैट ग्रजी, और आई एम नॉट दैट ईगो मेनियक जो अपने आप एक बस मुझे बात नहीं करनी तो मुझे बात नहीं करनी। आई पर्सनली डोंट फॉल इन ऑन टू दैट कैटेगरी। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मैं कम्युनिकेट करता हूँ और करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ। सो आई थिंक मेरे पे कोई रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है, और शी इज माई वाइफ, सो आई कैन डू दैट। नोबडी कैन स्टॉप मी इन दिस प्लैनेट। हम्म। लोग धमकी देंगे शायद, वकील धमकी देंगे, पुलिस वाले धमकी देंगे, बट उनकी धमकी सब व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है, अनलेस वो चीज उनके पास पेपर पे है। सो दैट्स अबाउट इट। और ये एडवाइस दूंगा, डरिए मत, सब कुछ सही होगा एट द एंड। अगर झूठे केसेस हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। एंड में उनको, जिसने ये केसेस डाले हैं, उनको प्रूव करना पड़ेगा ये हम्म। चीज। डेफिनेटली। और इसमें टाइम वेस्ट होगा, बट एंड में जब वो आपके ऊपर, जब वो प्रूव नहीं कर पाएंगे और आप बरी हो जाएंगे, उस टाइम आपके। और हाँ, एक एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा, देखिए, फॉर द पीपल दिस इज, अगर आपके ऊपर झूठा केस है और आप बरी हो जाते हैं, तो प्लीज उस मैटर को वहां पे मत छोड़िए। कुछ लोग सेटलमेंट कर लेते हैं कि चल ठीक है, मेरा 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 पिन छूटा, मैं अब निकल गया, चलो कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को, जस्ट बी अ गुड सिटीजन टू दिस कंट्री। ऐसे लोगों के ऊपर 211 के केस, 340 के केसेस और डालिए। इन लोग को पूरा, जब जब इन्होंने सेकंड टाइम नहीं सोचा आपको आपको बर्बाद करते टाइम, तो आप क्यों इनके बारे में सोच रहे हैं। आप हम्म। भी इनको, ऐसे लोगों को, जस्ट दे आर सोशल इविल्स। ऐसे लोगों को उन्हीं का, जस्ट ईट का जवाब पत्थर से दीजिए। मैं ये बोलना बिल्कुल। चाहूंगा, ऐसे लोगों को छोड़िए मत। बिकॉज अगर आप छोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट विक्टिम बनाएंगे, आपसे कुछ पैसे ले लिए, अब वो अगले विक्टिम से भी वही पैसे लेंगे देयर, उनका लालच रुकेगा नहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो Prashant, ये it's मेरा very नजरिया brave है। of you to come up with your story on our platform that you've come up with this story of yours and you're fighting your own case. आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, जी। प्लस आपने खुद को मोटिवेट करके रखा हुआ है और आप दूसरों को भी जी। मोटिवेट कर रहे हैं कि आप डरिए मत, आप फाइट कीजिए। सो दैट्स वेरी वेरी ब्रेव ऑफ यू, आई वुड से। एंड ये एक बहुत ही मैं अगर बोलूँ तो आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं लोगों के लिए। आप है एक्चुअली, आप जिस तरीके से थैंक यू आपने सो लोगों मच। को कहा है, सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये केस है जल्द से जल्द खत्म हो जाए एंड यू कैन बी अ फ्री पर्सन अगेन विदाउट एनी बर्डन इन योर लाइफ। एंड या आई एम होपफुल कि बहुत जल्दी ही आपका ये केस खत्म हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी फिर से नॉर्मली आप जी पाएंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आए, आप अपनी स्टोरी बताई लोगों को और उनको इंस्पायर किया और उनको इनफैक्ट काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें भी कही है। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर दैट, प्रशांत। थैंक यू सो मच। एंड एक एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा बिफोर आई एंड ऑफ द कॉल। So I know this video will be seen by my former wife. So मैं यही चाहूंगा कि इस मैटर को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट थिंग्स आर फॉल्स। वी कैन एंड थिंग्स ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल, ऑन अ वेरी गुड नोट,
and live our lives as we want to live our lives. There is no point wasting, मैं आपके ऊपर 10 केसेस करूं, आप मेरे ऊपर 10 केसेस करो, कुछ नहीं है, आपकी सोसाइटी में इंसल्ट है, आपसे कोई बात नहीं करेगा, फ्यूचर फ्यूचर देखिए, दैट इज व्हाट इट इज. I believe let's just come to a common ground and end this thing on a very peaceful note and move ahead from there. So that is the message that I want to give you. And Antra, thank you so much for inviting me. And I really feel obliged that you gave me this platform to come up and share my story. Because it's, I do not get it, because I do not get such platforms, and because the people who are sitting as leaders in our society who are trying to solve the matter, even they are also constrained under the law not to, I mean, they, even if they want to help somebody, they can't. And Hmm. it's and being and saying this, whether a matrimonial issue, when there are people, both of the parties are not able to communicate, this is an opportunity actually where to earn money. जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस वाले भी अपॉर्चुनिटी का, स्पेशली पुलिस वाले बहुत Hmm. इसका फायदा उठाते हैं. बट एनीवे, लोगों से ये बोलूंगा, डरिए मत. एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी आउट हियर. And it was beautiful talking to you, and it feels good to you, really, that there is somebody and there are people who are listening to you. So heads up on the good work, and please, there are plenty of people like us, please help them come up on the platform, and so that other people can be motivated and um, try to feel less and anxious and stressed. Yes. So that's our responsibility, as I told you before, also. So we are trying to bring up such stories and make people aware. And we are doing our best. Whatever we are able to do, we are doing that for the victims. So, and Thank we are you. really hopeful, Prashant, that आपका जो ये केस है वो जल्दी खत्म हो जाए, I एंड hope. अब I hope. वापस अपनी जिंदगी में नॉर्मली जी सके, एक जी. खुशहाल जिंदगी जी सके. So thank you so much for joining, Prashant, and Thank you so much for inviting me. please do update us on your case. Definitely, definitely Yeah. I will. I Thank will. you. Thank you so Thank you, much. Antra. Have a good day. Bye bye.